और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है एंशिएंट इंडियन लॉजिक फॉर सीक्वेंस ऑफ वीकडेज। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। The time of our life is divided into weeks, 7 days. Some named after celestial bodies, others after gods, and a very specific sequence which the whole world follows. Have you ever thought about it? Who named the days? Who arranged them in this way? Why are there only 7 days in a week? Let's check the internet. Egyptians, Babylonians, Greeks. Why not? We all have been taught how they influenced Indian astronomy. After all, the word hour comes from the Greek hora. Not really. There is no evidence for all this. Zero. Those old serious-looking dudes didn't do any of it. The West just gave them credit. We believed it without checking. The word hour comes from hora, but hora actually comes from the Sanskrit word ahoratra. There's an ancient Indian book called Surya Siddhanta, serious work on astronomy. It says, arrange the 7 grahas, the major celestial bodies visible to the naked eye, from slowest to fastest. Call it the sequence. Make a list of the hours of the day. Start assigning each hour a graha as per the sequence. When you reach the bottom, carry over to the next day. The graha that gets the first hour of the day is called the Dinpati. The deity of that graha then also becomes the deity of that day. This is how the days get their Vedic names. And notice the sequence? That's the secret of the sequence of weekdays. And the whole world follows it. But why is Mangalvar called Tuesday and not Mars Day? You see, Vedic days were named after Vedic deities. When out-of-India migrations happened, the days went too and got dubbed after the corresponding local deities. Greeks, Romans, Germanic tribes, Anglo-Saxons, and finally the English names were born. 1,000 years later, the Britishers taught it back to us. But Indian astronomy usually divides the day into 30 muhurtas. Where do the 24 hours come from? See. That's what the Greeks gave. Nope. Srimad Bhagavatam talks of ancient times when the days were divided into 24 parts, not 30. That's where the word hora gets called as the 24th part of a day, the hour. It's not just Surya Siddhanta or Bhagavatam. Aryabhatiya also talks of the same logic for naming and arranging the weekdays. It seems the Central Board of Secular Education was way too busy in teaching us Greek achievements that it glossed over such mammoth contributions of Vedic Bharat. Let it no longer be lost in narrative wars or remain unacknowledged. The world's days, their names and their arrangement, it's all given by Bharat. Our Bharat. बात करें अगर इस वीडियो की, तो नो डाउट इससे पहले हमने कभी नहीं सोचा कि दिनों की शुरुआत कैसे हुई। हमें बस यही लगा कि भाई शायद ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो है ये एक अंग्रेजों का दिया हुआ कैलेंडर है और उसी के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे यही लगता था अंग्रेजों का दिया हुआ कैलेंडर। और उसके बाद वैसे पीर मंगल बुध जो हम लोग बोलते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि वो तो फिर उर्दू में इस तरीके से बताया गया, लेकिन कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से ये बने, ये हम लोगों ने आज वीडियो में देखा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका था कि जिस तरीके से 24 आवर्स के मतलब पर डिवाइड किया गया या उनके साथ सेट किया गया, हम लोग कहेंगे यार हाँ, सेट किया गया ना बेसिकली, ताकि जो है वो जितने भी डेटीज हैं उनका एक एक दिन। और लिटरली मैं अभी ये देख रहा था ना, मैं हैरान हो रहा था कि समटाइम्स आप जब ये जायचे वगैरह जो होते हैं सितारों के जब हिसाब लगवाते हैं अपने, तो उसमें दिन का भी हिसाब होता है कि हर दिन का जो है वो हिसाब अलग अलग होता है। इफेक्ट भी
इफेक्ट भी डिफरेंट होता है हर मैंने दिन सुना है। का। और इसमें देखो वो जितने भी ग्रह बोलते हैं ना, हाँ, ग्रह बोलते हैं, उनका भी जैसे जिक्र किया गया कि मतलब उनके अकॉर्डिंग जो स्लोएस्ट से लेके फास्टेस्ट की तरफ जाती है, है ना, वो चीज का भी ध्यान रखा गया है। वैसे सच बोलूं तो काफी एक मैं कहूंगी कि इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं, हालांकि छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने कभी जो सोची भी नहीं होती, उनकी एक इतना डिटेल वर्क उसके पीछे होता है, या वो किस कॉन्टेक्स्ट में चीजें बनाई जाती हैं, ये हम लोगों को बाद में पता चलता है जब उनके असरात भी होते हैं। यार अभी जो वीडियो देख रहे थे ना, बीच में उन्होंने वाकई एक लाइन बहुत सही बोली कि हमें ये बताते हैं पर्शियन साइंटिस्ट ने ये कर दिया, ग्रीक साइंटिस्ट ने ये कर दिया, फलाने साइंटिस्ट ने ये कर दिया, लेकिन जब हमें अपने ऊपर बात आती है ना, हमें अपने बारे में इतना पता ही नहीं होता। इवन कि हमें जो बुक्स भी ज्यादातर यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, उनमें भी यही चीज जो है बेसिकली डिस्कस की जाती है कि फलाना अंग्रेज जो है उसकी थ्योरी ये है, फलाने की थ्योरी ये है। नो डाउट वो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, लेकिन उससे पहले भी तो चीजें एग्जिस्ट करती थी ना, वो हमें बिल्कुल भी नहीं उनके बारे में मालूम। हाँ बिल्कुल, ये फिर वही बात आती है। अब तो काफी सारी वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, तो आइडिया हो गया कि बस सिर्फ एक क्रेडिट जो है उन लोगों ने दिया, उन लोगों ने ये चीज जो है मतलब लोगों के लिए उनका एक नाम बन गया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, और वो ये कि जिस तरीके से इसके बीच में डिफरेंट हम कहिए कि प्लैनेट्स का जिक्र किया गया और उसी बेस पर जो है वो फिर नाम भी रखा गया, तो मैं ये बस पूछना चाहती हूँ कि मतलब जैसे शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र और बुध है ना, और फिर सोम, तो मतलब ये जितने ये ग्रह हैं, और फिर यानी स्लो मतलब ये क्यों, मतलब यार देखे ना, मतलब शनि काम मैं बताता हूँ शनि जिस इंसान को लगता है ना, जहां तक मैंने सुना है, शनि जिस इंसान को लगता है उसकी लाइफ में वो काफी देर तक रहता है। अच्छा, तो वो ठीक है ना, हाँ, तो वो जो है ना बड़े आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना जाता है आपकी लाइफ से। तो हाँ, तो बेसिकली ये शायद चीज हो सकती है, क्योंकि शनि का मैंने सुना है। फिर उसके बाद मंगल का तो बाकियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शनि का मुझे हाँ बाकी नहीं, वही मैं कहने लगा, बाकियों का आइडिया आप मुझे दीजिएगा कि उनका क्या है, जो उनका एक चलने का सीक्वेंस है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, मतलब जो वीक डेज हैं उस तरीके से बनाए गए हैं, तो ये जरूर हम लोगों को बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि मतलब जो थोड़ी सी हम लोगों को सीक्वेंस वाइज जो डिटेल उसकी समझ में आई है, बट ये सियारों के लिहाज से मुझे उनकी परफॉर्मेंस का नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा प्लैनेट्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो मैं जरूर जानना चाहूंगी आप लोगों से। अच्छा, अभी मैं मजे की बात बताता हूँ। थोड़े दिन पहले ना मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो वो जो है ना पिछले कुछ अरसों से जो है ना उस पे काफी ज्यादा भारी टाइम चल रहा है। तो मैंने उसे पूछा, यार क्या हालात है आजकल, क्या कर रहे हो? कहता यार क्या बताऊं, शनि लगा हुआ है। यार वैसे मैंने ये शुरू से बात लोग यहाँ पे करते हैं इस तरह की बातें भी, शुरू से मैंने देखा है। मुझ पे तो शनि आया हुआ, तुम पे भी तो शनि आया हुआ, पूरा शनि चल रहा है, मतलब इस तरह की बात है। अब मुझे नहीं पता कि वैसे लोगों को, आई एम श्योर किसी को भी नहीं पता होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बस उनको ये पता है कि शनि हो तो थोड़ा भारी होता है, इस वजह से टाइम मतलब सही तरह से नहीं चलता, इस वजह से वो ये बात कर देते हैं। इवन के क्या नाम लेते हैं, आप जब हिसाब किताब लगवाते हैं यहाँ पर, जिसे हम जायचा कहते हैं, तो बेसिकली होता वो भी कुंडली टाइप ही है, लेकिन जब आप वो लगवाते हैं तो आप क्या नाम लेते हैं, जो जिस बंदे से आप लगवा देते हैं, आपके सितारों में कुछ गड़बड़ हो ना, तो वो आपको वो भी बता देते हैं। इवन के वो ये भी कहते हैं कि आपके सितारे जब मूव कर रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं भैया आपके सितारे आजकल गर्दिश में है, तो आपके हालात चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो देखे ना, चीजें जो रिजेंबल करती हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वर्ड्स जो है वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं आकर, बट जो एंशिएंट बुक्स की मैं बात करूँ उनके बारे में मैं कहती हूँ कि जिस टाइम पर ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई और मतलब बुक्स वगैरह लिखी गई, सच में वो लोग बहुत, मैं कहूँगी कि सिविलाइज लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। हम लोग आजकल के लोगों के बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पर मैं बात करूँगी कि अगर शायद इतनी ज़्यादा इन्वेजन ना हुई होती और डिस्ट्रक्शन ना हुई होती, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, चाहे वो नालंदा या तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वो सब चीज़ें इस तरीके से डिस्ट्रॉय ना की जाती, तो मुझे लगता है कि आज वाकई में जो ये रीजन है ये बहुत रिच होता इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और मुझे लगता है कि ये जो आज मतलब डिफरेंट लोगों ने क्रेडिट अपने नाम पर लिया हुआ है, तो शायद
उनको मौका ना मिलता, क्योंकि हर चीज का आगाज अगर देखा जाए तो यहाँ से यार बेसिकली अगर बात फिर वही आ जाती है कि उन लोगों ने क्रेडिट इस वजह से लिया क्योंकि बहुत देर तक हमें जो है अपनी चीज़ों का पता ही नहीं था, हमें उसके बारे में बताया ही नहीं गया था। ये तो अब सोशल मीडिया है, तो अब जो है आप चीज़ जो डालते हैं सोशल मीडिया पे वो बहुत जल्दी जो है वो वायरल होना शुरू हो जाती है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है नॉलेज पहुंच पाता है। पुराने वक्तों में जो है नॉलेज जो है उससे पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। नहीं, मुझे मतलब ज़्यादा हैरानगी ये होती है कि हम लोग सिर्फ कुछ 100 साल पहले ही बातें करते हैं, लेकिन जो हजारों साल पहले की चीज़ें हुई हैं और अभी तक उनके प्रूफ मिल रहे हैं, तो वो बहुत हैरानकुन आपको मतलब कर देती हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब से बताना कि आप में से किस किस को इस बैकग्राउंड के बारे में पता था, ये नॉलेज थी। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और जिन लोगों को नहीं पता वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, जरा हमें भी हौसला रहेगा भाई हमारे साथ कोई और है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।